Good afternoon, students. Today we will start with our Unit 2. So, Unit 1 is there. The first chapter in Unit 1 was just the introductory chapter about overall IT service management. The chapter 2 and 3 is talking to you about service strategy. Okay. In the second chapter, service strategy ka, the first phase of ITIL, service strategy ka principles. In second chapter, how to implement service strategy. Okay, exploring service strategy. So now onwards, we will start with second phase of service life cycle in Unit 2 called as service design. Then obviously in next unit, service transition, service operation. So now in from the second unit onwards, the structure of chapter is very simple and straightforward. That first part of any phase or any service life cycle or any unit now onwards will be the first point, will be the principle of that particular phase, why that particular phase has to be there in ITSM. So there will be principle of service design, there will be principles of service operation, there will be principles of service transition. After learning the principles, then we have to learn the processes of that particular phase. That means service design processes, that are very important topics in the syllabus, because that processes we have to learn as a service provider. because कौन सी phases है, कौन से steps है, उसमें किस तरीके का processes है. हाँ, कुछ processes को सब processes भी हैं. Then at the end of that particular unit, there will be challenges, critical success factor and risk measurement. There are few topics. तो ये एक स्ट्रक्चर है ITIL के डॉक्यूमेंटेशन का. कोई भी पेज रहेगा तो पहले उसके प्रिंसिपल्स, फिर उसकी प्रोसेसेस, फिर उसके चैलेंजेस एंड रिस्क फैक्टर. So we will start here with service design principles. So we will first talk about fundamentals of service design, and then in the entire chapter we will talk about only the principles of service design, the unit 2 and phase 2 of service life cycle. So the service design, we have already learned a very good in detail about service strategy planning phase. Now, what is design here? Because in a computer science, when you're writing a project documentation, your design is all about diagrams. But here, service design means something else. The diagram also depict the structure of executable plan. Here also in service design, we have to depict the not only the picture, we have to write it down. Maybe it is theoretically stepwise, but it has to depict the picture of executable plan. The service design is all about taking a service and meeting the needs of the user and the customer. So why user and customer? Because sometimes user and customers are different. कस्टमर दोज हु आर परचेसिंग अवर सर्विस एंड समटाइम्स यूजर. जैसे बैंक का एग्जांपल दिया, बैंक वाले हमारा सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो वो सीईओ और मैनेजर वो हमारे कस्टमर बनते हैं, लेकिन यूजर उनके क्लरिकल स्टाफ रहते हैं. सो इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सर्विस फ्रॉम द स्क्रैच टू क्रिएट न्यू सर्विस. सर्विस डिजाइन कैन बी सीन एज अ कलेक्टिंग सर्विस नीड. जो भी हम लोग स्ट्रेटेजी पे नीड क्लियर किया गया है वो हम लोग सर्विस डिजाइन में कलेक्ट करेंगे, and we have to map them to integrated service requirement and create in a design specification so that service supposed to be provided or delivered to the customer at the end without any mistakes. The main objective of service design is to design IT services in conjunction with the IT practices, processes and policies. So this will be used to implement the strategy and facilitate the introduction of the service in the live environment. So डिजाइन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमारा डिजाइन शुड डिपिक्ट द पिक्चर कि एक्चुअली हमारा सर्विस कस्टमर को कैसे डिलीवर होने वाला है लाइव एनवायरनमेंट में, विथ इंश्योरिंग क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, cost effective service delivery. So these all things are going to be shown in the form of service design. तो इस फेज में हमको जो प्लानिंग है
वो एक्चुअली कैसे होगा उसके लिए जो एग्जैक्ट स्टेप्स है वो यहाँ पे और डिटेल मैनर में एज ए यूनिट क्रिएट करके दिखाना है. Service design should efficiently design the IT services so that they do not need much improvement during their life cycle. अगर डिजाइन आप लोगों का परफेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली अगर पहला स्ट्रेटजी और प्लान में डिटेल्स परफेक्ट रहेंगे तो वो डिजाइन को मिलेगा एज ए इनपुट. अगर डिजाइन आपका परफेक्ट रहेगा तो आपके आगे के फेजेस में आप लोगों को ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं गिरेगी. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस डिजाइन? क्या होता है डिजाइन? यहाँ पे डिजाइन मतलब ड्राइंग नहीं होता है. यहाँ पे डिजाइन मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की चीजें क्लैरिफाई करना, दैट मे बी ऑन पेपर और मे बी इन द minds of the people those who are going to serve. The main goal of service design stage can be defined as to design suitable and innovative IT services. Okay, including क्या क्या चीज आता है? आर्किटेक्चर डिफाइन एंड डिजाइन करना पड़ेगा, प्रोसेसेस डिजाइन करनी पड़ेंगे. अभी प्रोसेसेस डिजाइन करना मतलब कोई ड्राइंग नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स लिखना है प्रोसेसेस के, पॉलिसीज देखना पड़ेगा, हेल्प यूर और इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा फॉर मीटिंग द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट. अभी जो हमारे सामने है वो भी प्रॉपर डिजाइन में आना चाहिए और प्लस फ्यूचर के बारे में भी कुछ स्टेप्स वहाँ पे होनी चाहिए. देर आर 5 सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ सर्विस डिजाइन. एक पहला तो सर्विस में भी न्यू और चेंज सर्विस. व्हाट इज अ न्यू? फ्रॉम द स्क्रैच अगर हमको नई सर्विस बनानी है तो उसकी डिजाइन में थोड़ा अलग से स्पेसिफिकेशन रहेगा. और चेंज सर्विस, चेंज सर्विस क्या रहता है? हम लोग ऑलरेडी एक सर्विस दे रहे हैं बट बिकॉज ऑफ मार्केट में इतना इनोवेशन हो रहा है या फिर लोगों के एक्सपेक्टेशन या नीड चेंज हो गई तो हमको पुरानी सर्विस को ही मॉडिफाई करके कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसी जरूरत रहेगी. अगर कुछ बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन करना है तो इसका मतलब हम लोग पुरानी सर्विस को स्क्रैप करें और न्यू सर्विस शुरू करें. ओके, सो दैट इज वो फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट, सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम एंड टूल्स. हम लोग जो सर्विस डिलीवर करेंगे उसके लिए कौन से टूल्स यूज करेंगे? मैनेजमेंट के लिए टूल्स करेंगे. इन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस. पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस मीन्स एरिया और स्कोप ऑफ द सर्विस. जैसे हम लोग आईटी एसएम की बात कर रहे हैं तो ये सर्विसेज किससे रिलेटेड होगा? आईटी का. जैसे होटल या रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो वो कौन सा सर्विस हो गया? फूड सर्विसेज. सो हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा. हमारा पोर्टफोलियो क्या हुआ? टेक्निकल सर्विस, आईटी रिलेटेड सर्विस, दैट इज आवर पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग सर्विस कैटलॉग. सर्विस कैटलॉग के बारे में पिछले चैप्टर में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था बट यहाँ पे डिजाइन में डिटेल आता है. कैटलॉग इज नथिंग बट लिस्टिंग of our services in particular with their pricing and some more details so that customer को सिर्फ कैटलॉग देखकर ही हमारे सर्विसेज के बारे में पूरा आइडिया आ जाए. थर्ड एस्पेक्ट है आर्किटेक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली आप लोगों को आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसेसेस रिक्वायर्ड अडॉप्टेड. आप लोगों को ऐसी ही प्रोसेस करना चाहिए जो रिक्वायर्ड है. अडॉप्ट आप वही करेंगे जो रिक्वायर्ड है. आपको अच्छा लगता है इसलिए प्रोसेस वहां पे नहीं आएगी. प्रोसेस जो जरूरी है टू डिलीवर द सर्विस वही वहां पे आएगी. मेथड्स एंड मैट्रिक्स ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से. लोग काम करते हैं लेकिन काम करने के बाद उसका एनालिसिस, उसका असेसमेंट नहीं करते, इवैल्यूएशन नहीं करते कि वो सही ढंग से हुआ या नहीं. तो दैट्स व्हाई जब कभी भी कोई भी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे आता है तो उसमें मेजरमेंट जब हम बताते हैं तो वो नथिंग बट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ वट एवर वर्क वी आर अबाउट टू डू और वी आर डन करने के बाद भी उसका सक्सेस पैरामीटर, प्रोग्रेस पैरामीटर चेक करना चाहिए ताकि अगर कुछ हम लोग उसको और प्रोग्रेसिव काम सक्सेसफुली हुआ तो मतलब आप लोगों को मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है, करना चाहिए. क्योंकि सक्सेसफुल हुआ तो लेटर से अगर वो 70% सक्सेसफुल हुआ तो आप उसको 100% तक लेके जा सकते हो बाय मेजरिंग इट. The life cycle service design phase begins with set of new or changed business requirement and ends with the development of service solution designed to meet the documented business need. Documented business need क्योंकि बिकॉज हम लोग अभी प्लानिंग फेज में के बाद सर्विस डिजाइन में है, एक्चुअल सर्विस शुरू नहीं हुआ तो सब कुछ जो रहेगा ऑन द पेपर बेस ही रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज documented business need that are actual business needs when the service is in the actual ground. This developed solution is then transferred to the service transition for evaluation.
नेक्स्ट फेज में हम लोग पहले एक सॉल्यूशन बनाएंगे डिजाइन का, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड्स। फिर ये जो डिजाइन है सर्विस ट्रांजिशन में, फिर उसका इवैल्यूएशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, टेस्टिंग होगा एंड डिप्लॉयमेंट होगा। सो दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेज जैसा फेजेस नहीं है। इसमें ट्रांजिशन में ही टेस्टिंग होता है, चेकिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, एक्चुअल वर्क करके देखा जाता है। देन फिर ऑपरेशन फेज में एक्चुअल सर्विस कस्टमर को डिलीवर करना शुरू होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विस डिजाइन? अकॉर्डिंग टू ITIL, service design is relevant for organization involved in developing, delivering, supporting service, including internal and external service provider. For developing them, delivering, supporting services. Organizations aiming to improve service by effectively implementing the principles of service management, जो overall principles है वो, plus service life cycle approaches. Organization that require consistent management approach in a supply chain और value network, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सप्लाई चेन नहीं डिस्कस किया, बट वैल्यू नेटवर्क इज जस्ट making a trust within the organization and along with your stakeholder and customers. Okay, organization that apply for their services. The publication is the ITIL. Whenever I am referring a publication, यहाँ पे इसका मतलब है ITIL का जो ओरिजिनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन है उसे कहा जाता है ITIL पब्लिकेशन. The publication is also relevant to every professional involved in service management. कौन से प्रोफेशनल आईटी सर्विस में इन्वॉल्व रहेंगे? आरकी के आर्किटेक्ट रहेंगे, आईटी मैनेजर्स रहेंगे, आईटी के प्रैक्टिशनर रहेंगे, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे आईटी के सर्विस ओनर्स, मालिक, वो लोग रहेंगे. लेट अस टॉक अबाउट यूसेज. देयर आर नंबर ऑफ वेज टू प्रोवाइड एन आईटी सर्विसेज. जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब हम आईटीएसएम डिस्कस कर रहे थे. मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे अभी आईटी का यूज नहीं होता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा. या तो आईटी यहाँ पे सोलोली परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो किसी ना किसी बिजनेस का पार्ट है और उस बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है. सो वो वेयर इज द स्कोप ऑफ आईटी सर्विस इंक्लूडिंग इन हाउस. हम घर के अंदर भी आईटी यूज कर रहे हैं, हम लोग आउटसोर्स करके भी आईटी यूज कर रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप में भी आईटी यूज कर रहे हैं. This publication is generally relevant to all service delivery methods, those involved in the provision of IT services in their own organization. In the provision of outsourced services or in a partnership, will therefore find this publication applies. जो हम लोग publication की बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसी में से इस बुक्स का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डिपेंड है, और उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस बुक में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिकॉज देर आर 5 बुक्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच दैट ऑल 5 वीक्स इन डेप्थ इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. बिजनेस मैनेजर कैन फाइंड दिस पब्लिकेशन, या फिर हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग आईटी सर्विसेज एंड सपोर्ट फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस. Supplier organization manager, those who are supplying their services to the IT service provider, will also find this publication relevant when establishing the service delivery and support elements. Support agreements. Let us start with 4 P's of service design. जैसे मैंने आपको बोला है कि ओवरऑल ITSM का 4 P's अलग है और हर एक फेज का 4 P's अलग रहेगा. स्ट्रेटजी के 4 P's अलग थे, वैसे डिजाइन के भी 4 P's अलग है. विद इन अ वीक हम लोगों ने ITSM के 4 P's देखे हैं, देन स्ट्रेटजी के 4 P's देखे, लेकिन यहाँ पे 4 P's का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव. सो लेट अस टॉक अबाउट 4 P's ऑफ सर्विस डिजाइन. द सर्विस डिजाइन स्टेज ट्रांसलेट द कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स इनटू द सर्विस दे वांट. कैसे ट्रांसलेट करते, कहाँ से उनको मिलेगा? बिकॉज वो कहाँ पे ली गई है, नीड और डिमांड सर्विस स्ट्रेटजी में से. जो सर्विस स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस डिजाइन को, और सर्विस डिजाइन क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेगा एक्चुअल सर्विस दे वांट. सर्विस डिजाइन हेल्प्स यू टू डिटरमाइन द टारगेट मार्केट एंड हाउ योर बिजनेस कैन ऑफर टू बी और ऑफर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम योर कंपिटिटर्स. जब डिजाइन बनाते वक्त हम लोग स्पेसिफिकेशन ऐसा रखेंगे कि हमारी सर्विसेज में ऐसी चीजें हो जो हमारी कंपिटिटर की सर्विस में नहीं है. So a service designer must consider 4 P's when planning a service. What are that? First, people. The people in are in charge of providing
आईटी सर्विस, यहाँ पे कौन से पीपल की बात कर रही है? जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मतलब हमारे एम्प्लॉय जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे कस्टमर की बात नहीं हो रही है एज अ पीपल, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो काम कर रहे प्रोफेशनल उनकी बात हो रही है। द पीपल आर इन चार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज। This professional should have the skills and competencies required for providing services. So first is important in design phase, we are talking about our employees with appropriate skills. Second P in design is our product, that might be service or product. The products are tool, it might be a tools, services or might be a technology we use to deliver of to the customer and support of the services. So शायद हम लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टूल्स डिलीवर कर रहे हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, या फिर लोगों को टेक्नोलॉजी डिलीवर कर रहे हैं, जो हमका हमारा ओवरऑल सर्विस रहेगा, या फिर हमारे सर्विस को डिलीवर करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है डिजाइन फेज का। अब हमारे पास लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, और हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट पी इज प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस सपोर्ट एंड मैनेज द सर्विसेज being offered so that services meet the customer expectation and agreed service level. All processes must be measurable। हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्टिविटी जो डेफिनेशन है प्रोसेसेस का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इन डिजाइन फेज में, या फिर लिखेंगे या स्पेसिफाई करेंगे। बट वो हर प्रोसेस को हम लोगों को जब प्रोसेस खत्म होगा तो इवेल्युएट करते आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन अदर टेक्निकल वर्ड इज प्रोसेसेस मस्ट बी मेजरेबल। ओके, द नेक्स्ट पी इज पार्टनर्स। व्हेन डिजाइनिंग अ सर्विस, हम लोग सारी चीजें खुद से नहीं दे सकते, इसके लिए हम लोगों को सप्लायर्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरर्स लगेंगे, वेंडर्स लगेंगे, दैट we should be considered as they will be utilized to support the service once it is live. So डिजाइन फेज में हमको उनके बारे में भी सोचना है, बिकॉज उनका क्वालिटी हमारे क्वालिटी को मैटर करता है। ओके, सो दीज आर द 4 P's ऑफ सर्विस डिजाइन। Let us talk about service design principle. Now rest of the chapter we are talking about the design principles only. The service design is a part of business process as a whole. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स क्लैरिफाई होती हैं। The correct interfaces and links to the design activities are important. It is vital or it is important that an entire service lifecycle and the ITSM process are involved from the outset when designing a new or change service. डिजाइन फेज में अगर हमारा पूरा आईटी का टीम जो भी हमारा सर्विस का है, या फिर दूसरे लाइफ साइकिल के लोग हैं जो ट्रांजिशन वाले हैं, ऑपरेशन वाले जो ये प्लान बनाएंगे, उनको भी सर्विस डिजाइन फेज में इन्वॉल्व करना चाहिए टू लुक आफ्टर। बिकॉज क्योंकि इस फेज में जो डिजाइन बनेगा वो उनकी उनकी फेज में उन लोगों को लाइफ साइकिल फेज में यूज करना है। ऑफन ऑपरेशनल डिफिकल्टीज अराइज, कभी कभी डिफिकल्टीज आती है व्हेन देयर विल बी न्यू डिजाइन सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर लाइव ऑपरेशन एट द लास्ट मिनट। तो लास्ट मिनट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो ट्रांजिशन फेज और ऑपरेशन फेज के जो लोग हैं, या फिर जो सीईओज है, या जो मैनेजर्स है, उन लोगों को भी डिजाइन फेज में अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द गोल ऑफ सर्विस डिजाइन? मल्टीपल गोल्स हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एज पर द आईटीएल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे 15 20 30 50 गोल्स दिए, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड का सारा आईटी सर्विसेज कंसिडर किया है, पूरा आईटी सर्विसेज किसी भी तरीके का। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ गोल्स इन एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आईटीआईएल, जिसे आईटीआईएल पब्लिकेशन हम बोलते हैं, उसमें हो सकता है 20 30 50 तक एक गोल्स बताए रहेंगे, 20 30 50 तक प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स बताए रहेंगे। बट दैट आर नॉट क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोगों को बेसिक पढ़ना है उस सब्जेक्ट का। सो दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट लो। बट फिर भी लो है, फिर भी इसमें 10 12 15 तक हम लोग गोल्स या फिर प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। उसमें से मुझे एक्सपेक्टेड है, I should not say that because each and every sentence in the ITL documentation is important to become a very good manager or service provider. But at least इसमें से अगर आप लोग 60-70% पॉइंट्स भी ध्यान में रखते हो, तो भी आप लोग अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। Let us start with the goals of IT service design. We have to design service to meet business objective which are based on quality, compliance to the regulatory authorities, laws abiding,
एंड रिस्क एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। वी हैव टू डिलीवर मोर इफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इफिशिएंट एंड इफिशिएंट लिखा है तो टाइपो मिस्टेक है, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मेक सिंप्लीफाई दिस बुक, बिकॉज 5 बुक पढ़ना मुश्किल है। डिलीवरिंग मोर इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सॉल्यूशंस, सर्विसेज टेलर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड। ये टेलर्ड वर्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कस्टमाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से। What is the next goal? We have to design service that can be easily and efficiently developed, अच्छे से बन जाए, जल्दी बन जाए, and enhance within appropriate time scale। अगर उसमें हम लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो कम से कम टाइम में वो एनहांस हो जाए। प्लस कॉस्ट भी रिड्यूस होनी चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए, कंस्ट्रेंट भी और मिनिमाइज होने चाहिए जहाँ पे पॉसिबल है, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, बिकॉज लोगों को यूज़ भी करना है सर्विस, तो हमको डिलीवर करने के लिए भी सिंपल चाहिए और लोगों को यूज करने के लिए भी सिंपल चाहिए। डिजाइनिंग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस फॉर द डिजाइन ट्रांजिशन। ओके, so we are talking about designing efficient and effective processes for designing transition operation and enhancement of हाई क्वालिटी आईटी सर्विस। मतलब डिजाइन फेज में हम लोगों को आगे आने वाली फेज जो है ट्रांजिशन, खुद डिजाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन और एनहांसमेंट, जिसे हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारा डिज़ाइन इस तरीके से सोफिस्टिकेट हो कि उसको ट्रांजिशन फेज में आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके, फिर ट्रांजिशन से ऑपरेशन फेज और आगे आसानी से वो इम्प्लीमेंट हो सके, ये इसका गोल है। along with supporting tools, system and information in particular service portfolio to manage services through their life cycle. Designing सिक्योर एंड रेजिलेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलेंट मतलब जो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, सिक्योर बोल सकते हो आप लोग उसको। सो दिस इज अगेन द गोल, डिजाइनिंग सिक्योर एंड रेजिलेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एंड डेटा। नेक्स्ट गोल है डिजाइनिंग मेथड एंड मैट्रिक्स फॉर इवेल्युएटिंग। मेजरमेंट के लिए हम लोग मेथड्स एंड मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे ताकि हमारी प्रोसेसेस आगे इवेल्युएट हो सके फॉर देयर इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द आईटी प्लान्स। डिजाइन फेज में ही करना है। अभी प्लान तो स्ट्रेटजी में हुआ था, यस वो प्लान हुआ था रिक्वायरमेंट गैदरिंग जैसा, बट अभी इम्प्लीमेंटेशन के प्लान जो है वो यहाँ पे होंगे। प्रोसेसेस यहाँ पे बनाई जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिजाइन ऑफ क्वालिटी आईटी सॉल्यूशंस टू मीट करंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ये एक गोल है। नेक्स्ट गोल ऑफ डिजाइन फेज इज to assist in the development of policies and standard in all design areas, obviously। next है यहाँ पे develop IT skills, capability, moving strategies, design activities in operational tasks, making efficient use of all IT resources। then next goal is to contribute to improving overall quality of IT service। so few things you might be things seeing at as a repetitive यहाँ पे, बट ये रिपीटेटिव नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी आईटी सर्विस की बात की है रिगार्डिंग डिजाइन कंस्ट्रेंट इम्पोज, बिकॉज डिजाइन के अपने ज्यादा लिमिटेशंस रहते हैं। क्योंकि जब आप डिजाइन बनाते हो मतलब यू आर डिजाइनिंग अ सर्विस दैट इज इम्प्लीमेंटेबल, जो डिलीवर होंगी, तो उसमें आप लोगों को ऐसी सर्विसेज डिजाइन करनी पड़ेगी जो विद इन द बजट है। बजट के अंदर ही आप लोगों को ऐसे, नहीं तो आप सर्विस में ऐसा कोशिश करोगे डिजाइनिंग में कस्टमर को सब कुछ दे दे, लेकिन क्या कंपनी के पास उतना बजट है, तो उसमें कुछ इम्पोज कंस्ट्रेंट रहते हैं, उसको भी आप लोगों को रेट्रोफिट करना पड़ता है, मतलब पुराने और नए का कॉम्बिनेशन करके आप लोगों को फिट करना है। लेट अस टॉक अबाउट बैलेंस डिजाइन। द डिजाइन ऑफ सर्विसेज इज delicate balancing act of for new business requirement and ensuring that not only functional requirement but also performance objectives are met। so कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसके हिसाब से आप लोगों को उसकी नीड तो सेटिस्फाई करना है। प्लस आपको डिजाइनिंग फेज में और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो आउटपुट रहेगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड रहना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड रहना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सो देयर शुड बी अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ यूजफुलनेस एंड परफॉर्मेंस। ऑल दिस नीड टू बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, हमारे पास कितने रिसोर्सेज है प्लस हमारे पास कितना टाइम फ्रेम है प्लस कॉस्ट, जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो सर्विस
It might be service or product that it facilitate functionality and quality, including all of the management and operational functionality required. रिसोर्सेस में हम लोग कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे फॉर बैलेंसिंग द डिज़ाइन? हमारे पास पीपल कैसे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या हमारे पीपल वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हमारे पास कितना पैसा है। बिकॉज 100% अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम सर्विसेज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। अभी दिस एग्जाम्पल यू माइट थिंक irrelevant, but it is really relevant. लेट अस से दो कॉम्पिटिटर है जिनको एक ही कॉम्पिटिटर है, मतलब उनका बिजनेस या सर्विस एक ही तरीके का रहेगा, लेकिन जब नीड रहती है मार्केट में कस्टमर को, जो कॉम्पिटिटर में से जो पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है और बाद में आने वाले प्रोडक्ट को कम पॉपुलैरिटी मिलती है। आई विल गिव यू एग्जांपल इन द आईटी फील्ड ओनली। आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये मनी का जो ट्रांजेक्शन था, स्कैन करो क्यूआर कोड और करो, उसमें सबसे पहले मार्केट में इंडिया में एटलीस्ट पेटीएम आया था। ओके, पेटीएम पहले चला था, फिर बाद में गूगल पे और फोन पे, ऐसे बहुत सारे और एप्लीकेशन है। वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी एप्लीकेशन, बट पेटीएम पहला आया था। और अभी भी अगर आपको लगता है कि आप लोग गूगल पे या फोन पे यूज कर रहे हो इसलिए वो पॉपुलर नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा जो चलता है वो कौन सा है? पेटीएम। व्हाई? बिकॉज दे हैव फॉलोड द टाइम स्केल। जब नोटबंदी हुआ था तब ये पेटीएम ऐप था और वो तब काफी यूजफुल वहां पे आया और उसके बाद में उसका पॉपुलैरिटी काफी बढ़ा है। सो दैट्स व्हाई शेड्यूल एंड टाइम स्केल ऑफ डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज अगर इनके टाइम स्केल में डिजाइन रेडी नहीं होगा तो आगे की ट्रांजिशन फेज, आगे का ऑपरेशन फेज ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डिजाइन एक्टिविटी नीड टू इंश्योर, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस डिजाइन एक्टिविटी, जो प्रोसेसेस है, पॉलिसीज है, उन वो जो लोग जो बना रहे हैं उनको उनको एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। जैसे सप्लायर से कुछ इनपुट चाहिए तो उनसे आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, या फिर अदर आईटी प्लानर्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट जो आप लोग यूज करने वाले, जिनका आप हेल्प लेने वाले हो, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोगों को डिजाइन इंप्लीमेंट करने के लिए द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट बिजनेस एंड आईटी प्लान। ना वर्जन्स क्यों बोलते हैं? हम लोग प्लान बनाते हैं, फिर उसमें और कुछ ऐड करते, फिर और कुछ ऐड करते रहते। जो सबसे लेटेस्ट है वही प्लान हम लोगों को डिजाइन के लिए कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ऑल स्ट्रेटेजी में जो बना हुआ है लेटेस्ट वन है। ओके, नाउ all of the architectural document and design document are supposed to be consistent. ओके, आर्किटेक्चर एकदम हाई फाई दे दिया और हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए होना चाहिए। आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में क्या क्या रहता है? दे सपोज टू बी फ्लेक्सिबल एंड अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द न्यू बिजनेस नीड। इस तरीके का आर्किटेक्चर ना, आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए वो यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बिकॉज आर्किटेक्चर के बहुत सारे स्टैंडर्ड इंटरनेट पे या फिर आप लोगों को पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल मिलेंगे। बहुत सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके का आर्किटेक्चर आप लोग यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस है, आप लोगों को ऐसा आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है जो फ्लेक्सिबल हो एंड विच विल अनेबल आईटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू न्यू बिजनेस नीड। अगर कोई नया नीड आता है तो वो आर्किटेक्चर में आना चाहिए, जिसे हम लोगों ने बोला है लूज कपल्ड, कभी भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। इंटीग्रेट विथ ऑल स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, आपका आर्किटेक्चर इंटीग्रेटेड होना चाहिए स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी से। सपोर्ट द नीड ऑफ अदर स्टेजेस ऑफ सर्विस लाइफ साइकिल, अदर स्टेजेस में भी वो आर्किटेक्चर सुटेबल होना चाहिए, जैसे ऑपरेशन एंड ट्रांजिशन। Also, that architecture facilitate a new or change quality service and solution aligned to the need and time scale of the business. Business time scale के बारे में हम लोग और भी एक बार बात करेंगे, मल्टीपल टाइम करेंगे, बट यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज टाइम स्केल इन द सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो पहले आता है मार्केट में वो ज़्यादा सर्वाइव रहता है, अगर आपका आइडिया यूनिक रहेगा तो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाद में सर्विस शुरू किया तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा टू मेक योर को स्पेस इन द मार्केट। यहाँ पे बिजनेस फंक्शनैलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। बिजनेस फंक्शनैलिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट
इसमें क्या क्या रहता है, बिजनेस फंक्शनैलिटी रहता है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट रहता है, लेजिस्लेटिव मतलब गवर्नमेंट के कुछ लॉज रह सकते हैं। जैसे अभी आप बोलोगे कि हम लोगों ने बहुत बार रेगुलेटर्स और ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में बात की, बट कुछ रूल्स है। जैसे आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर रहते हैं उनके वायर्स कहीं पे आप लोगों को अंडरग्राउंड डालनी पड़ेंगे, कहीं पे ओपन, बिकॉज वो रूल है गवर्नमेंट का, जहाँ पे अलाउ है वहाँ से आप लोग नेटवर्क कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर थिंग इज फैसिलिटेड थ्रू गवर्न स्ट्रेटजी एंड governance. Okay, through strategy and governance, what you are going to use to implement the design, resource, functionality and schedule, यही हम लोगों ने अभी तक बात की है। So diagram is just a representation of whatever theory we are learning. अब चलते हैं एक्चुअल टास्क पे। इन प्रिंसिपल, हाउ टू आइडेंटिफाई सर्विस रिक्वायरमेंट, और कौन से टॉपिक्स है जो सर्विस रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई। The service design must take into account all service elements by adopting holistic approach to the design of new service. This approach should take into account the service and its component and their interrelationship to ensure that the service provided meet the functionality and the quality of service expected by the company in all sectors. All sectors means with the employee also, to the customer also, in all other smaller department also. The point is scalability. Scalability refers the scope of increasing or decreasing the performance or the area of the our service. The scalability of service meet future requirement. जब हम लोगों को डिमांड बढ़ेगी तो हम लोगों को सर्विसेज बढ़ानी पड़ेंगी। सो वो रिक्वायरमेंट भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन सपोर्ट टू द लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम लोग सर्विस शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं शुरू कर रहे कि एक महीना हमको अभी लॉकडाउन है तो फिर बाद में बंद करेंगे। नहीं, बिजनेस कभी भी शुरू करना है तो आप लोगों को बोला है कि स्काई इज द लिमिट, एट द एंड तक हमको सोचना है कि वो बढ़ना ही चाहिए। द बिजनेस प्रोसेसेस एंड बिजनेस यूनिट सपोर्टेड बाय द सर्विसेज, उनका रिक्वायरमेंट आपको ध्यान में रखना है। आईटी सर्विस एंड एग्रीड बिजनेस फंक्शनलिटी एंड रिक्वायरमेंट। एग्रीड बिजनेस फंक्शनलिटी किससे होता है, एक तो कस्टमर से होता है प्लस सप्लायर से होता है। उनका रिक्वायरमेंट आप लोगों को गैदर करना है, आइडेंटिफाई करना है। द सर्विस इटसेल्फ एंड सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट। So what do you mean by service? Service is nothing but a name to you and to some task. And service level requirement, जब हम सर्विस डिलीवर करते हैं तब जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेंगी उसे कहते हैं सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट हम कस्टमर को जब हम लोग डॉक्यूमेंटेड तरीके से बोलते हैं कि हम लोग ये चीजें आपको देंगे, सो दैट इज रेफर्ड एज SLA कॉल्ड एज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। These are terminologies you have to remember for your MCQs in the test, that class test we are going to take. The technology component used to deploy and deliver the services, including infrastructure, environment, the data, and the applications. So we have to talk about all the requirement. टेक्नोलॉजी का भी रिक्वायरमेंट रहेगा जो हम लोग डिप्लॉय करने के लिए यूज करने वाले हैं। और कौन सी रिक्वायरमेंट रहेंगी, इंटरनली सपोर्टेड सर्विसेज कौन सी है, उनके कंपोनेंट्स कैसे है, वो कौन से चीज़ों से वो ऑपरेशनल लेवल आर्गुमेंट एग्रीमेंट से रहेंगे। ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट्स क्या होता है, जब सर्विस कस्टमर को एक्चुअल में डिलीवर करते हैं, ओके, तब हम लोगों ने कस्टमर से क्या क्या प्रॉमिस किया है कि क्या चीज़ें उसको एग्जैक्टली डिलीवर होंगी इन द लाइव एनवायरमेंट। अभी ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट यहाँ पे क्यों है डिजाइन में, बिकॉज अगर डिजाइन में हम लोग उसका रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे तो ऑपरेशन लेवल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। द एक्सट्रीमली सपोर्टेड सर्विसेज एंड कंपोनेंट, सॉरी नॉट एक्सट्रीमली, एक्सटर्नली सपोर्टेड सर्विसेज एंड कंपोनेंट, बाहर से जो लोग हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं एज अ सप्लायर से और उनके कंपोनेंट्स ले रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट। ओके, अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से रहते हैं, जो सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसे अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसका रिक्वायरमेंट, which will often there have their own related agreements and schedule. Here, the performance measure and metrics का requirement, legislated और required security levels, ये सारे requirements आपको लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पार्ट है आपका, तो अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड ड्राइवर। तो व्हाट अदर रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने बात की थी, वो बात की थी सर्विस डिलीवरी की रिक्वायरमेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम लोग प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है,
तो अभी हम लोग कस्टमर की बात नहीं कर रहे, हम लोगों के कंपनी को सस्टेन और सर्वाइव या सर्विस को सस्टेन या सर्वाइव होने के लिए कौन सी चीजें लगेंगी जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करें और डॉक्यूमेंट करें। IT मस्ट रिटेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका प्रॉफिट रिक्वायर से आपका स्कोप, आपका पोजीशन, आपके कंपटीटर से आप लोगों का एडवांटेज, दिस ऑल थिंग्स आर comes under the business requirement and its driver. Okay. Okay. And also provide the most appropriate catalog list of the services which is with an acceptable level of service quality which is aligned to the business need. But our business driver, business drivers are the people, because लोग आप लोगों के बिजनेस को सक्सेस या फेल करेंगे। इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूरी है, एंड द टास्क दैट सपोर्ट फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो आपके प्रोसेसेस है वो एज पर द बिजनेस पॉलिसी है या नहीं, तो आपके कंपनी का सक्सेस या फेलियर उस पर डिपेंड है। दिस रिक्वायर्ड दैट IT develop and maintain the close and regular appropriate relationship and exchange the information in order to understand the operational and tactical as well as strategic requirement of the business. So what is the strategic requirement of the business, or we are talking about drivers that are affecting, because strategy of business is covering how much of customer in how much time, what amount of profit we are going to do. Are we going to ask for 50 to 50 to profit, or are we asking about most quality and gaining the less profit? No, less profit चल सकता है, zero profit नहीं चल सकता है। These are going to be your strategic requirement. कोई कोई कंपनी अपने हिसाब से आप लोगों को बिजनेस का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एंड एग्रीड इनटू टू मेन एरियाज टू मेंटेन द सर्विस अलाइनमेंट। इंफॉर्मेशन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस। एग्जिस्टिंग सर्विस मतलब जो सर्विस हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेंगी, बिकॉज ओल्ड सर्विस है और उसको अगर हम लोगों को फिर से कस्टमर को डिलीवर करना है, तो व्हाट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड टू द एग्जिस्टिंग सर्विस विथ रिगार्ड्स टू, क्या नया चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या नया फंक्शनलिटी ऐड करना पड़ेगा, क्या हम लोगों को बिजनेस के प्रोसेसेस में चेंज करना पड़ेगा, हमारी डिपेंडेंसीज, हमारी प्रायोरिटी, क्रिटिकलिटी एंड इम्पैक्ट चेंज हो गया या नहीं हो गया, ये रिक्वायरमेंट हमको गैदर करना पड़ेगा। बिकॉज पुरानी सर्विस है, हमको लगता है कि वो मार्केट में और पॉपुलर होनी चाहिए, तो हमको उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ऐड करनी पड़ेगी तो उसका रिक्वायरमेंट हमको ढूंढना पड़ेगा, हम चाहते इसलिए ऐड नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो मैं आज आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है रिक्वायरमेंट है इसलिए बिजनेस को रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं। आप लोगों को फैक्ट फाइंड करना पड़ेगा, रिसर्च फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप लोगों को उसके लिए अलाइनमेंट अलॉटमेंट करना पड़ेगा। चेंजेस इन वॉल्यूम एंड सर्विस ट्रांजेक्शन, क्या आपको आपका जो सर्विस है, वॉल्यूम मतलब आपका अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आप लोग वहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ पीपल यू आर गोइंग टू सर्व, वो आप लोगों का साइज बता देता है कि आप लोगों को सर्विस घटानी है या बढ़ानी है। लोग अगर हैप्पी नहीं है तो आप लोगों को सर्विस घटानी पड़ेगी। ओके, हैप्पी नहीं है सर्विस तो सर्विस घटानी पड़ेगी, इसको निगेटिव में मत लो। तो कस्टमर अगर हैप्पी नहीं है तो हम लोगों को उसकी जगह पे नई सर्विस डालनी पड़ेगी और पुरानी सर्विस हटानी पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा, अगर कस्टमर हैप्पी है, ओके, तो हम लोगों को सर्विस और बढ़ानी पड़ेंगी ताकि और ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हम लोग उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंक्रीज सर्विस लेवल एंड सर्विस लेवल टारगेट ड्यू टू न्यू बिजनेस ड्राइवर और रिड्यूस टू द ओल्ड सर्विसेज, लोअरिंग द प्रायोरिटी ऑफ दोज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट, जो ओल्ड हो चुके हैं रिप्लेस करना चाहते हैं उनका प्रायोरिटी कम कर देंगे। एडिशनल नीड फॉर सर्विस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज। आप लोगों को क्या नई सर्विस, हम लोगों ने अभी बात की कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है एग्जिस्टिंग सर्विस की। अगर हमको फ्रॉम द स्क्रैच एकदम से पूरा नया सर्विस अगर बनाना है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन है, हम लोगों को कौन सा फैसिलिटी एंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना है, उसकी रिक्वायरमेंट हमको है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। बिजनेस प्रोसेस कौन सी सपोर्टेड करेंगे, डिपेंडेंसीज, प्रायोरिटीज, क्रिटिकलनेस एंड इम्पैक्ट, ये सेम है, नई सर्विस रहे या एग्जिस्टिंग सर्विस रहेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोनों पॉइंट सेम है, चेंजेस इन इम्पैक्ट, प्रायोरिटी। ठीक है,
फिर आप लोग नई सर्विस के लिए कौन सी बिजनेस लाइफ साइकिल लेंगे, आप सीजनल वेरिएशंस दोगे या नहीं दोगे। जैसे सीजनल वेरिएशंस कैसे रहते हैं, दिवाली में कुछ अलग तरीके का डिस्काउंट एंड ऑफर्स रहते हैं वैसे, मतलब ओकेजनल है वो। सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट एंड सर्विस लेवल टारगेट, नई सर्विस है तो आप लोगों को नए से रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन लेवल, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूजर्स, आप लोग किसको टारगेट कर रहे हो, कौन से यूजर है। और आप लोगों को नए से सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आपको गैदर करना पड़ेगा। देन प्रेडिक्टेड लेवल ऑफ change, example known future business requirement or enhancement, level of business capability to support, for example local business based support है या फिर आप लोग ग्लोबली जाना चाहते हो। नई सर्विस है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ती है। लेट अस टॉक अबाउट डिजाइन एक्टिविटी। ऑल डिजाइन एक्टिविटीज are motivated by changes in the business needs or improvements in the service. स्ट्रक्चर्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू डिजाइन एक्टिविटीज, हम लोगों ने पहले स्टार्ट कैसे किया था, डिजाइन गोल से बात में किया, फिर डिजाइन रिक्वायरमेंट से बात किया, और हम लोग बात कर रहे हैं डिजाइन एक्टिविटीज की। ऑल डिजाइन एक्टिविटीज मस्ट बी मोटिवेटेड बाय चेंजेस इन द बिजनेस नीड। क्यों, बिकॉज चेंजेस आने वाले हैं, लोगों को हम लोग, वी आर जस्ट डीलिंग विद द पीपल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी सर्विस विच इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू हैव अ चेंज और इनोवेशन। A structured and holistic approach to the design activity should be adopted so that all information available is taken into account to ensure consistency and integration throughout the service provider organization in all design activities. So what are the activities? Requirement collection पहला activities है। आगे कलेक्ट किया, काम खत्म नहीं, उसको एनालिसिस करो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट है या नहीं, whether it is really required or not. For that we require analysis. Then engineer to ensure that business requirement are clearly documented and agreed to our all stakeholder, कस्टमर को भी एग्री होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे डिजाइन फेज में कस्टमर किधर से है, यस वी कैन seek guidance of few customer, those who are not actually as our customer but they can give us a guidance because वो उस तरीके का सर्विस पहले से यूज कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ अप्रोप्रिएट सर्विस टेक्नोलॉजी, ये सारी एक्टिविटीज है जो हमको डिजाइन फेज में करें। यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिजाइन में एक्चुअली होता क्या है। हम लोग अप्रोप्रिएट सर्विस डिजाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे मतलब हम लोग लिखेंगे कि किस तरीके से डिलीवर करेंगे कस्टमर को, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, प्रोसेसेस कौन सी यूज करेंगे, प्रोसेसेस में स्टेप्स कौन सा रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस मेजरमेंट हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे, प्लस रिव्यू एंड रिविजन ऑफ ऑल प्रोसेस कैसे करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन सर्विस डिजाइन, प्लान, आर्किटेक्चर, पॉलिसी, लिएजन विथ ऑल अदर डिजाइन एंड प्लानिंग एक्टिविटीज, जैसे सोल्यूशन डिजाइन जो करने वाले हैं उनके साथ, प्लस रिक्वायरमेंट डिजाइन जो करने वाले हैं उनके साथ सबका कोऑर्डिनेशन रखेंगे। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईटी पॉलिसीज एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिजाइन प्लान, आर्किटेक्चर एंड पॉलिसीज। ऑल्सो रिवीजन ऑफ ऑल डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, डिजाइन खत्म होने के बाद रिवीजन ऑफ ऑल डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड प्लानिंग फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी स्ट्रेटेजीज यूजिंग रोड मैप, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट प्लान। ये एक्चुअल वर्क आपको करना है। रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑल डिजाइन प्रोसेस डिलीवरेबल्स, इंश्योरिंग द अलाइनमेंट बैलेंसिंग विथ ऑल कॉर्पोरेट एंड आईटी स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, ओवरऑल बिजनेस प्रॉपर्ली, मतलब प्रॉफिट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। Let us talk about design aspect. An overall integrated approach should be adopted for the design activities documented in previous section and should cover the design of service solution, functional requirement, resources. Also, we need to consider another aspect as service management tools, portfolio, हमारा area of work, technology, architecture. Also, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिजाइन, ट्रांजिशन एंड ऑपरेशन फेज, बिकॉज हमारे डिजाइन के बाद वो आने वाले तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको रियली क्वालिटी मैटर करता है तो मेजरमेंट सिस्टम, मेथड्स एंड मेट्रिक्स फॉर द सर्विसेज, द आर्किटेक्चर एंड देयर constituent components and processes. The key aspect is that whenever we are new or modified service, या तो हम from the scratch नया कर रहे हैं या फिर old service को modify कर रहे हैं, when they are designed to meet changing business need, whenever the new service and solution is produced, it must be checked against each other to ensure that it integrates and interfaces with all existing service. अगर हम लोग हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग में एक नया सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी पुरानी सर्विस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके और बाकी हमारे जो प्रोसेसेस है, गोल्स है, पॉलिसीज है, उसमें इजीली वो फ्लेक्सिबली ऐड होना चाहिए।
These five aspects of service designs are discussed in the following section in greater detail in design transition and subsequent operation. Let us talk about few aspects जो यहाँ पे बताए गए हैं, not five but we are talking about the approach taken and associated time scale. क्या important part है while service design plan जब हम service design के produce करते हैं तो आप लोग कौन सा स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहे हो और किसके हिसाब से टाइम स्केल आपका है. ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट ऑफ द न्यू चेंज सॉल्यूशन ऑन द बोथ बिजनेस एंड आईटी. कमर्शियल इम्पैक्ट बिजनेस में आपका जो कंपटीटर है वो कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है आप लोगों को, इंक्लूडिंग द फंडिंग कॉस्ट एंड बजट रिक्वायर्ड. टेक्निकल इम्पैक्ट ऑफ सॉल्यूशन, staff and their roles and responsibility, their skills, their knowledge, their training, their competency, how they are going to deploy, how they are going to operate, and how they are going to maintain the new solution to the business. The assessment and mitigation of risk to the services, processes, and service management activity. Communication planning and all aspect of communication with interested parties, लोगों से बात करना पड़ेगा. The impact of solution on new or existing contract or agreements. अगर आप लोग modify भी कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर आप नए से फ्रॉम द स्क्रैच भी अगर नया सर्विस शुरू कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. ओके, so this is all about the aspect of new service that we are just willing to introduce in the market. That's all for the day, student. Thank you so much for patiently listening to this lecture. We are stopping here.